Assalamu alaikum students. How are you today? Welcome to the first lecture of this series of chemistry teaching videos. इससे पहले कि हम केमिस्ट्री के बारे में लेक्चर को स्टार्ट करें, हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ सवालात का जायज़ा लेते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री क्यों स्टडी करते हैं, हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, वाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, वट डू वी स्टडी इन केमिस्ट्री। केमिकल साइंस के आगाज़ के आसार कदीम ज़माने से मिलते हैं, बल्कि मौजूदा दौर की तरक्की का दारोमदार भी बहुत हद तक केमिस्ट्री पर है। यही वजह है कि केमिस्ट्री आपके सिलेबस में शामिल है, लिहाजा केमिस्ट्री से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। लेकिन केमिस्ट्री को स्टडी करना हरगिज़ मुश्किल नहीं। केमिस्ट्री इज़ योर कांस्टेंट कंपेनियन। There is no human activity that does not involve chemistry. Through the entire day, you are constantly in contact with chemicals and chemical changes. From early morning soap, shampoo and toothpaste, the air you breathe, water you drink, the food you eat, the clothes you wear, the beverages you drink, the medicine you take, wood, hardboard you use to make furniture, sand, cement, iron, bricks you use to build houses, all are chemicals. The functioning of the human body is one complex set of biochemical reactions involving biomolecules like proteins, carbohydrates, oil, fats, vitamins, and enzymes. All are biochemicals. Also imagine the role and importance of petrochemical products, medicines and drugs, detergents, paper, plastics, paints and pigments, insecticides, pesticides, which all are fruit efforts of chemists. Keeping in mind the significance of chemistry, we must start focusing on this universe. There is a natural philosophy of science. Now, what is science? The knowledge that provides understanding of this world and how it works is science. The universe is made up of two entities, matter and energy. What is matter? Matter is anything in this universe which has mass and occupies space. Now, matter is of two types, living matter, non-living matter. Living matter includes all living organisms, animals and plants, and also microorganisms. Non-living matter includes all non-living stuff materials such as the stuff of the sun, all stars and planets. Study of living matter is biological science. Study of non-living matter is physical science. Biological science includes the study of all living organisms. If we study animals, then that is zoology. If we study plants, then that is botany. If we study microorganisms, then that is microbiology. Physical science includes chemistry, physics, astronomy, etc. And our concern is about chemistry. Now, chemistry, the study of all material stuff, matter in this universe. Physics, study of energy and forces in this universe. We can summarize these concepts as a flow chart like this. Now, natural philosophy of science is actually the study of nature. It is of two types, biological sciences, physical sciences. Biological sciences is the study of living things. There are two types, zoology, botany. Zoology is the study of animals. Botany is the study of plants. Physical sciences is the study of non-living things. And there are various branches, chemistry, physics, astronomy, geology. And our main concern is about chemistry. And chemistry is the study of matter. And what is matter? That has any
anything that has mass and occupies space. हम केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है. व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मटेरियल है. इसमें हम 4 बातें स्टडी करते हैं: कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस. कंपोजिशन में क्या होता है? कंपोनेंट प्रेजेंट एंड देयर अमाउंट्स. स्ट्रक्चर में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स. प्रॉपर्टीज 2 टाइप्स की होती हैं: फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब हम एग्जांपल लेते हैं और मिसाल से कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं. वाटर के एग्जांपल में सबसे पहले कंपोजिशन. इसमें जो कंपोनेंट मौजूद हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इसमें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसका फार्मूला H2O है. इसमें 88.89% मास बाय मास ऑक्सीजन और 11.11% मास बाय मास हाइड्रोजन है. इसके स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड होते हैं, और इसको हम स्ट्रक्चर में यहाँ पे इस तरह शो कर सकते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम एक वी शेप स्ट्रक्चर में बॉन्डेड हैं. इसको हम इस स्ट्रक्चर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो किया हुआ है. इसमें लूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में. स्नो फ्लैक्स के स्ट्रक्चर में एक खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वाटर की अरेंजमेंट और भी अच्छी होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आइस की फॉर्म में वाटर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ऑलमोस्ट ये कलरलेस होता है, और गैसेस फॉर्म में भी कलरलेस है. मेल्टिंग पॉइंट में 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 273.15 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट में 99.98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट डिग्री में 211.96 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373.13 केल्विन है. वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और ये मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो आयनिक या पोलर होते हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व करता है. किसी और लिक्विड के मुकाबले में ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट है. प्योर वाटर डिस्टिल वाटर की तरह इसकी pH 7 होती है, और ये न्यूट्रल होता है लिटमस की तरफ. ना रेड लिटमस ब्लू होता है इसमें, और ना ब्लू लिटमस रेड होता है. इसके रिएक्शन में 2 तरह के रिएक्शन शामिल हैं. पहले रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शंस हैं, जिसमें ये एज बेस के तौर पे भी एक्ट करता है और एसिड के तौर पे भी एक्ट करता है. जैसे HCl के साथ वाटर जब मिक्स होता है तो HCl अपना प्रोटॉन H वाटर को देता है. चूँकि वाटर प्रोटॉन लेता है इसीलिए ये बेस है, और एसिड HCl प्रोटॉन देता है इसीलिए ये एसिड है. दूसरी मिसाल में वाटर और अमोनिया जब मिलते हैं तो वाटर अपना प्रोटॉन अमोनिया को देता है, इसी वजह से वाटर यहाँ पे एसिड है. तो इन दोनों रिएक्शन में, एक रिएक्शन में HCl के साथ वाटर बेस है और दूसरे रिएक्शन में अमोनिया के साथ वाटर एसिड है. इसीलिए जो सब्सटेंस दोनों प्रॉपर्टी शो करता है उसको एम्फोटेरिक कहते हैं, वो एम्फोटेरिक है. वाटर के दूसरा रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है. इस रिएक्शन में ये हाइड्रोलाइज करता है किसी भी साल्ट को जिसमें वाटर एज ए रिएक्टेंट साल्ट को ब्रेक करता है. जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसमें स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH और एक एसिडिक साल्ट बनता है. इसी वजह से ये सोडियम कार्बोनेट अपने सॉल्यूशन को वाटर में अल्कलाइन सॉल्यूशन शो करता है. इसी वजह से जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का पानी में, वो NaOH की वजह से अल्कलाइन होता है. सो हम केमिस्ट्री में 4 बातें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं.
अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री में हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं, जो मैटर है। मैटर दो टाइप में हम स्टडी करते हैं एक्चुअली, एक प्योर फॉर्म में और एक इम्प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में जो मैटर है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं और इम्प्योर फॉर्म में हम उसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर्स की दो टाइप होती हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जैसे एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और हेट्रोजीनियस में जैसे सॉइल और रॉक्स। होमोजीनियस में मिक्सचर्स की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है और हेट्रोजीनियस में मिक्सचर्स की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट। मिक्सचर्स जस्ट मिक्सिंग अप ऑफ कंपोनेंट से बनते हैं, जबकि जो सब्सटेंस होता है ये प्योर सिंगल मटेरियल होता है। इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक इसमें होता है एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं इसमें कंपाउंड। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं प्योर फॉर्म में यूनिवर्स में जिसमें सब एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसमें मेटल्स होते हैं, इसमें नॉन मेटल्स होते हैं, इसमें मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव अनायन बनाते हैं। और जो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दोनों प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट होती हैं, मेटल की और नॉन मेटल की कुछ केसेस में। कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो उससे कंपाउंड बनते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, आयोनिक एंड कोवलेंट। आयोनिक कंपाउंड्स में मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में नॉन मेटल कंबाइन होते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइन में एक आयोनिक बॉन्ड होता है और NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम मेटल है और क्लोराइन नॉन मेटल है। जबकि वाटर की एग्जांपल में एक कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है। इस तरह हम मैटर को दो क्लासेस में, मिक्सचर और सब्सटेंस में जब क्लासीफाई करते हैं, मिक्सचर्स होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और कंपाउंड में आयोनिक और कोवलेंट। अब हम आप लोगों ने 9th क्लास में जो केमिस्ट्री स्टडी की है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे जो आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 9th क्लास केमिस्ट्री में आप लोग डिफरेंट चैप्टर्स को जो आप लोगों ने स्टडी किया उनमें एक फंडामेंटल कंसेप्ट्स थे केमिस्ट्री के। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये तीसरा चैप्टर था। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जिसमें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया गया। फिर सॉल्यूशंस के बारे में चैप्टर था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में चैप्टर था और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में चैप्टर था। इस 9th क्लास बुक में आप लोगों ने 8 चैप्टर स्टडी किए थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, थर्ड पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, फिफ्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सिक्स सॉल्यूशंस के बारे में, और सेवंथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल रिएक्टिविटी जिसमें आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने 10th क्लास केमिस्ट्री में जो चीज़ें स्टडी की हैं डिफरेंट चैप्टर्स में वो कौन सी हैं। 10th क्लास केमिस्ट्री में जो डिफरेंट चैप्टर्स आप लोगों ने स्टडी किए उनमें सबसे पहला जो चैप्टर था वो केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर एसिड, बेसिस और साल्ट्स के बारे में था। नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक चैप्टर था जो द एटमॉस्फेयर के बारे में था। नेक्स्ट चैप्टर वाटर के बारे में था, ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। और जो लास्ट चैप्टर था ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में था, जिसमें डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया गया था। अब आखिर पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनके आपने आंसर देने हैं।
क्वेश्चन ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साइंस? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वी स्टडी इन केमिस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 3, what are the fields of study of natural philosophy? Question number 4, what is meant by matter? Question number 5, what is a substance? Give its types. Question number 5, what are mixtures? How are they formed? Question number 7, what is a compound? How is it formed? Question number 8, what are elements? Classify them. Question number 9, what type of compound is formed between a metal and non-metal? इसमें आपने एग्जाम्पल भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 10, what type of compound is formed between a non-metal and non-metal? इसमें भी आपने एक एग्जाम्पल देनी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़। होपफुली आई विल सी यू in next lecture.